مسائل اور آ گئے ہیں اور کام نہیں ہوا, ٹرانسفر نہیں ہوئی, ڈیلے ہو گئے. تو ادارہ اگر چاہے تو چٹکی بجاتے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے. 65 ارب روپے لینے کے بعد بھی جب DHA نے زمین ایکوائر نہیں کی وہ کیسے آپ کو ڈیلیور کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کا بیہیویئر ہے اسٹاف کا, وہ بہت ہی بد تہذیب والا بیہیویئر ہے. ایسوسیشن جب فعال ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈیلرز کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر قابو پاتی ہے. موجودہ صورتحال میں اسی وجہ سے لوگ بیچارے پریشان ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے پروفیشن کے اندر ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان اتھارٹیز کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہی کے پلاٹس ہیں جن کو وہ سیل کرتے ہیں, لوگوں کو تیار کر کے لے کر کے آتے ہیں. آپ انویسٹمنٹ کریں, وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو لے کر جب آتے ہیں تو پھر جب ان کے مسائل حل نہ ہوں تو وہ الٹا ان کے لیے ایک برڈن سا بن جاتا ہے کہ ان کو 2 پیسے کی آمدنی نہیں ہوئی ہے اور مسائل اور آ گئے ہیں اور کام نہیں ہوا, ٹرانسفر نہیں ہوئی, ڈیلے ہو گئے. اس کے حوالے سے جو آج یہاں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر DHA جو ویلی ہے اس کی ایسوسیشن کی میٹنگ ہے اور یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک اچھا خاصا اکٹھ ہے لوگوں کا کہ یہ آپس میں بیٹھ کے ایک مشاورتی اجلاس ہے کہ جس کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا, کس طرح یہ DHA کی مینجمنٹ سے بات کریں, کس طرح سے آپس میں جو ہے نا ایک ہم آہنگی کے تحت کام کریں تاکہ ان کا کام بھی اچھا ہو اور مینجمنٹ کو بھی فائدہ ہو, DHA کی مینجمنٹ کو بھی فائدہ ہو. آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیا ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے. بابر بشیر ڈار میرا نام ہے اور ڈار ایسوسیٹ میری اسٹیٹ. تو آپ یہ بتائیے کہ جو DHA کے مسائل ہیں جس کے لیے آج آپ نے کیا یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ آپ کافی عرصے سے اس کاروبار سے وابستہ ہیں. جی میں کوئی 21 سال ہو گئے DHA کا کام کرتے ہوئے اور ویلی کا اسپیشلی جب سے یہ ویلی لانچ ہوئی تھی اس وقت سے یہ اس کا کام کر رہا ہوں. تو DHA ویلی کے مسائل تو بہت سارے ہیں. کوشش ہم گائے بگائے ہماری تنظیم تھی DHA ویلی کی, ہم کوشش گائے بگائے کرتے تھے کہ کافی سارے مسائل ہم نے اس کے حل بھی کروائے ہیں. اور ابھی جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ہم ادارے سے رابطہ بھی کر رہے ہیں مگر وہ مسائل اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے بارے میں ادارہ ان کو اس لیول پہ یا اس نچ پہ لے کر نہیں جا رہا جو ان کو حل کیا جائے. ہمارے مسائل ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 500 روپیہ آپ عسکری بینک میں جمع کرائیں اور اس کو ویریفائیکیشن کرانے کے لیے فیز 5 جائیں اور 2000 کا کرایہ لگا کے جب ویریفیکیشن کرا کے واپس آئیں تو پتہ لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا اور آج فائل اوپن نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ سرچارج کے ہمارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے NDC کے ڈیوز کے چھوٹے چھوٹے ایسے لاتعداد مسائل ہیں کہ جو ادارہ چاہے تو حل کر سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے بار بار درخواستیں دینے کے باوجود بھی ہمارے لڑکے مطلب جتنے ینگ لڑکے اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں, سارے پریشان ہیں. ہم ادارہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے. ادارے کے ساتھ ہم کام کرتے اتنا عرصہ ہو گیا, ہمارا یہاں رزق لکھا ہوا ہے. ہماری سب سے پہلی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ سارے مسائل ادارے کے سامنے رکھیں اور ان سے ریکویسٹ کریں اور میڈیا پہ بھی ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ یہ بچے باوقار طریقے سے جو رزق کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. اور ادارے کا نام بھی ہے اور یہ ادارہ یہ نہیں ہے کوئی ایک ایسے کوئی مسائل ہیں جو حل نہ ہو سکے. تو ادارہ اگر چاہے تو چٹکی بجاتے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو آپ کے توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے کو چاہیے کہ ہماری جو بھی ہماری اپلیکیشنیں جاتی ہیں ان پہ غور کریں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں. میرا نام ڈاکٹر پرویز ہے, سندھ پراپرٹی سینٹر میرے آفس کا نام ہے, بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں میرا دفتر ہے. DHA ویلی میں انتہا سے زیادہ مسائل ہیں جو کہ DHA ویلی کی مینجمنٹ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حل نہیں ہو رہے ہیں. گزشتہ 13 سال سے DHA ویلی کے الاٹیز جو ہے نا سفر کر رہے ہیں اور ان کو ہر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو لالی پاپ دے کے ٹرخا دیا جاتا ہے. پہلی دفعہ 2018 میں انہوں نے فرسٹ بیلٹ کیا جس میں تھرو آؤٹ زیرو انہوں نے 5 بلاکس کو, جیسے بھی مقصود صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو انہوں نے کنسیڈر کیا اور 2 اوورسیز کے بلاک کو کنسیڈر کیا. وہ چند لوگوں کو اس میں مطلب انہوں نے نوازا ہے. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں دوسرے بلاکس والوں کو کیا قصور ہے, جبکہ تمام جتنے بھی مطلب اس کے اندر بلاکس ہیں پیمنٹ سب کی برابر ہے. 5 مرلے کی 8 مرلے کی تمام لوگوں نے ایکول پیمنٹ دی ہوئی ہے. دوسرے بلاکس کے اندر بھی تھرو آؤٹ زیرو فائلس تھیں, ان کو بھی بیلٹنگ کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا. چلے فرسٹ بیلٹ میں آپ نے کنسیڈر نہیں کیا, سیکنڈ بیلٹ ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے انہی 5-7 بلاکس کی جن میں تھوڑا سا سرچارج لگا ہوا تو ان فائلس کو آپ نے کنسیڈر کیا, باقی بلاکس کو آپ نے اگنور کیا. کیوں کیا اس کو اگنور؟ حالانکہ تمام بلاکس کے اندر جو آخری بلاکس ہیں آئرس, لوٹس, لیونڈر, گلیکسونیا جتنے بھی بلاکس ہیں ان میں تھرو آؤٹ زیرو سرچارج بے شمار فائلز ہیں, یعنی ٹائملی پیڈ جس کو کہا جاتا ہے, DHA والے اپنی زبان میں ٹائملی پیڈ کہتے ہیں. وہ فائلز لاتعداد موجود ہیں, ان کو انہوں نے بیلٹنگ میں شامل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ویلی کے اندر جتنے بھی پلاٹس ہیں فوری طور پر فل 4 جو
थ्रू आउट ज़ीरो फाइल्स हैं, उनको कम से कम फौरी तौर पर करना चाहिए। और जिन लोगों की फाइल्स के ऊपर सरचार्ज अगर माफ़ हुआ है तो DHA ने अपनी पॉलिसी के तहत उसको माफ़ किया, लोगों ने गन पॉइंट पे माफ़ नहीं करवाया, आप उसको कैसे इग्नोर करते हैं? उनको भी जो है ना बैलेटिंग के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अब इसमें कसूर किसका है? ये DHA की मैनेजमेंट का कसूर है, जो जॉइंट वेंचर है उनका कसूर है। अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले जनरल नवीद साहब ने कहा था हमारे पास टोटल 17% ज़मीन है। तो आपकी 13 साल की जो है क्या कारकर्दगी? इसका हल क्या है कि ये ज़मीन ली जाए, लोगों को ये और जगह सेटल किया जाए? इसका हल क्या है? ये बहुत पुराना दरीना मसला हो गया। सर इसका हल तो DHA की मैनेजमेंट के साथ बैठकर टेबल पर हल किया जा सकता है। मेरे पास इसका हल है। मैं इसका नहीं इतना शॉर्ट नहीं बता सकता मैं आपको ब्रीफली, उसके लिए बाकायदा मैंने फिजिबिलिटी बनाई हुई, मैं उनको दे सकता हूँ इसका पूरा हल। और DHA के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। इस वक्त DHA जो इस तरीक़ेकार से चल रहा है, 2008 में जब इसकी बुकिंग हुई थी, जिस वक्त जहाँ DHA वैली एग्जिस्ट करती है वहाँ पर उस वक्त 10,000 रुपये कनाल का रेट था, आज 10 लाख रुपये कनाल का रेट है। उन्होंने उस वक्त पैसे लिए थे 65 अरब रुपया, उन्होंने ज़मीन एक्वायर नहीं की। आज 10 लाख रुपये कनाल के ऊपर ज़मीन कैसे एक्वायर करेंगे? आप समझ लें कि DHA वैली के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अलाटीज़ हैं, उनको DHA की तरफ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मौजूदा सूरत हाल में DHA ने अपनी जेब से पैसे लगाने ही नहीं है। 65 अरब रुपये लेने के बाद भी जब DHA ने ज़मीन एक्वायर नहीं की, जब उस वक्त 10,000 रुपये कनाल ज़मीन थी, आज 10 लाख रुपये कनाल ज़मीन है, वो कैसे आपको डिलीवर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक जामे मंसूबा है, एक फिजिबिलिटी मैंने बनाई है, वो मैं DHA अगर मैनेजमेंट चाहती है तो मैं उनको बैठ के शेयर कर सकता हूँ, उनको पूरा प्लान दे सकता हूँ, जिससे DHA के ऊपर किसी किस्म का भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा और तमाम अलाटीज़ भी मुतमिन हो जाएंगे, तमाम लोगों को प्लाट्स भी मिल जाएंगे। जी, मेरा नाम मलिक हबीब है, फ्रीडम स्ट्रीट से मेरा तल्लक है। ठीक है। आज क्योंकि DHA वैली का मैं भी मेंबर हूँ, ठीक है, एक वोटर हूँ, और क्योंकि DHA वैली में इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है ना, और उन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए आज की मीटिंग कॉल की गई है, ठीक है, ताकि मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके हल के लिए। क्योंकि DHA वैली के अंदर ऑलरेडी एक एसोसिएशन मौजूद है, ठीक है, पूरी बॉडी मौजूद है उसकी, और आज की मीटिंग का हमारा यही है ज़्यादा उसमें कि हम अपने मसाइल के लिए इन लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप एक्टिव हों, ताकि हमारे मसाइल को अच्छे तरीके से DHA में जाके हल करवा सकें। सीधा मसाइल हैं क्या? बहुत सारे मसाइल हैं जी। इसमें हमारे लिए ट्रांसफ़र में बहुत सारे मसाइल आते हैं, NDC में बहुत सारे मसाइल आते हैं, सरचार्ज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर सबसे बड़ा जो हमारा जो मसला है वो ये है कि जो इनका बिहेवियर है स्टाफ का, वो बहुत ही बदतज़ीब वाला बिहेवियर है उनका। जैसे डीलर्स को डील किया जाता है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हद तक अमेज़ है। क्योंकि हमारा शोबा जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रियल्टर्स के नाम से, आपको पता है फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नया पाकिस्तान के थिंक टैंक की भी मेंबर है, और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं। छोटे छोटे मसलों पे हमारे कामों को डिले किया जाता है, ट्रांसफ़र नहीं की जाती, छोटे छोटे कामों में रोड़े अटकाए जाते हैं, ठीक है ना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी आवाज़ या हमारी बातचीत आगे करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आज की जो ये मीटिंग है, ये दोस्तों ने जो कॉल की है, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि DHA वैली एक प्रोजेक्ट है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि DHA वैली के जो मेंबरान हैं, और जो लास्ट इसका इलेक्शन हुआ था उस वक्त तकरीबन 700 से ज़्यादा इसके वोटर थे। अच्छा। और इतनी बड़ी तंजीम और इतने बड़े मामलात, और उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग जो है ना वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा संग मील साबित होगी। थैंक यू। नजीब साहब, ये बताइएगा, ये DHA एसोसिएशन जो मसाइल पैदा हो रहे हैं या आपके मैनेजमेंट के साथ, अथॉरिटी के साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो क्या है और उनका हल क्या तजवीज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यकीन हुई आपका शुक्रिया, आपने आज इस जो हमारी मीटिंग मुनक़्क़िद होने जा रही है, वो बेसिकली वो तमाम जिन दोस्तों ने इसके ऊपर काविश की है और इसको मुनक़्क़िद करवाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो वो बेसिकली DHA के साथ, इंतज़ामिया के साथ हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो मसाइल के हवाले से छोटे छोटे मसाइल हैं, मगर उनको इतना लिंगर ऑन कर दिया गया है कि वो वहाँ पे
जिन लोगों ने आज से 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी और वो जब वो DHA के अंदर आते हैं तो उनके साथ जो रवैया रखा जाता है वो बड़ा नाजेबा है। अच्छा। और उस हवाले से हम लोगों ने आज इन दोस्तों को बुलाया, क्योंकि DHA वैली डीलर एसोसिएशन पहले भी थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज़ को समझा और दोस्तों ने कहा कि नहीं, यहाँ बैठ के अपने जितने भी रियल इस्टेट वैली से मुंसलिक रियल्टर्स हैं उनको आज इकट्ठा करके हम लोगों ने आज उनसे इन मसाइल के हवाले से भी बातचीत होगी और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि उन मसाइल को फौरी तौर पर इंतज़ामिया से मिलकर उनको हल भी करवाया जाए। ये कोई चंद लोग हैं कि जिनका रवैया इस तरह है या मजमूई तौर पर रवैया ये है? देखिए, बेसिकली DHA के अंदर आप देखें ना, कहीं पे भी DHA मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी। वो क्योंकि इंतज़ामिया की वजह से या जो लोग हैं जो इस चीज़ को क्योंकि मसाइल तभी बनते हैं जब इंतज़ामिया तावन नहीं करती जी। और वो तावन ना करने की वजह से वो लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। बेसिकली DHA वैली का प्रोजेक्ट आज से 12 साल पहले जो लॉन्च हुआ था और उसमें क्योंकि लोगों ने एक बड़े टाइम से अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आज आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इसके रेट भी अच्छे हुए हैं जी। और एक तो ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होती है दिन को, जिसकी वजह से वो रश की वजह से भी मसाइल बनते हैं। मगर इंतज़ामिया जहाँ पे 3-4 बंदों की जरूरत थी वहाँ पे एक बंदे को उन्होंने अपॉइंट किया और वो मसाइल जो हैं वो डेली के बेसिस पे अगर हल किए जाएँ तो वो दूसरे दिन नहीं रहते। नहीं तो ये तो बहुत छोटे मसाइल है कि हाँ एक बंदा है वहाँ 2 लगा दें या 3 लगा दें क्योंकि काम बढ़ गया है। तो इस पे जो इंचार्ज है उनका नाम क्या है वैसे, जो वो क्यों नहीं इस पे इकदाम कर रहे? देखें, DHA इंतज़ामिया जो भी है देखें वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही। अच्छा। तो आज हमने इस चीज़ को समझा कि हम लोग यहाँ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर एक अपनी मशावरत करें अपने दोस्तों के साथ। जब ये मशावरत इंशाल्लाह आज कंप्लीट होगी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं वो हम अपनी एसोसिएशन जो हमारी DHA वैली डीलर एसोसिएशन है जो इंशाल्लाह आज अपनी मशावरत से इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह अपने काबू पाने की भरपूर कोशिश भी करेगी। बेसिकली DHA वैली की एसोसिएशन जो है पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी सरगर्म थी और अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान में भी इसका एक नुमायाँ किरदार है और बानी एसोसिएशंस में से है और जिस वजह से इसका एक मकाम है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन का नाम आता है वहाँ DHA वैली डीलर एसोसिएशन का भी नाम वाज़े होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो इसका मकाम है इंशाल्लाह उसको भी बहाल रखा जाए और जो ख़ास तौर पर जो डीलर के मसाइल हैं, अपने रियल्टर्स के मसाइल हैं जो इंतज़ामिया के साथ हैं और स्पेशली तौर पर डीलर्स के अपने मसाइल, क्योंकि एसोसिएशन जब फ़ाल होती है तो वो अपने डीलर्स के मसाइल होते हैं उनके ऊपर काबू पाती है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी चीज़ के ऊपर आज इंशाल्लाह मशावरत भी करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको काबू कर सकें। मेरा नाम मकसूद अहमद है। दादड़ा स्टेट मेरी स्टेट का नाम है और मैं पहले यूनियन के अंदर एक मेंबर रह चुका हूँ। तो हमारे एक तो मसाइल हैं, दूसरी हमारी जो चीज़ें हैं कि चूँकि तकरीबन 70,000 प्लॉट हैं DHA वैली में, ठीक है, और DHA वैली की तंजीम का होना, नुमाइंदा तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है और फिर इसके अलावा डीलर्स के आपस में मसाइल हैं उसके लिए भी तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि हमारे ये चूँकि जॉइंट वेंचर है JV है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। इनका एक ऑफिस DHA 1 में है और दूसरा ऑफिस DHA 5 में है। अब एक रसीद आप DHA 1 में जमा करवाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप DHA 5 में जाते हैं, जब आप वेरिफिकेशन करवा के वापस आते हैं तो टाइम ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा। अलाटीज़ जो है ना वो दूर दराज इलाका से आते हैं, मसलन बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग हैं और सिंध में बहुत सारे लोग हैं, पेशावर में बहुत सारे लोग हैं जो DHA वैली के अलाटीज़ हैं। अब उनके पास वक्त भी कम होता है और इन मसाइल को हल करने के लिए हमने पहले भी कई दफ़ा जो है ना DHA की इंतज़ामिया से रब्ता किया है लेकिन खातर खा हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हम इज्तमाही तौर पर एक तंजीम के ज़रिए से इनके साथ रब्ता करें, अगर हमारे मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जाती तो फिर हमको एहतिजाज की तरफ जाएंगे। ये बताइए, जो ये तो मैनेजमेंट के मसले हो गए, तो डीलर्स के आपस में मसले वो क्या हैं वैसे? डीलर्स के आपस में मसले ये होते हैं कि जी एक बंदे ने फ़ाइल ख़रीदी है, अलॉटी पीछे से बैक कर गया, अब आगे बंदा जो है उसने बेची होती है, वो कहता है जी हमें हर हाल में डिलीवरी चाहिए। तो इसमें ये हम जो है ना ज़ाब्ता इखलाक बनाना चाह रहे हैं कि अगर वाक़तन वो चीज़ नहीं मिली तो आगे उसको कैसे सेटल डाउन करता है। फिर जो है वो बयाना ले के बाद जो है मार्केट के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो नए नए आते हैं तो नए लड़कों से वो बयाना लेके चले जाते हैं, बाद में उनका कोई ऑफिस नहीं होता, पता नहीं चलता वो किधर गए हैं। तो इस तरह की हम ये चाह रहे हैं कि वो रिटर्न हो, रसीद के ऊपर एग्रीमेंट हो, उसके साथ जो है ना बिज़नेस किया जाए। ये बताइए, जो 70,000 प्लॉट हैं DHA वैली के अंदर, उसमें से कितने ऑन ग्राउंड हैं अंदाज़न? तकरीबन इस वक्त 15-18 हज़ार प्लॉट जो है उनकी रीबैलेटिंग की गई है।
ابھی اتنی کو 10-12 ہزار پلاٹ کی مزید متوقع ہے، باقی آن گراؤنڈ پلاٹ نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے۔ 2008 کا یہ لانچ ہوا پروجیکٹ ہے، آج تک بھی یہ ہوا کے اندر ہے۔ موجودہ صورتحال میں اسی وجہ سے لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ پھر انہوں نے جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس کی بیلٹنگ کا، وہ بھی بہت مختلف ہے۔ کسی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جی تھرو آؤٹ زیرو جو ہے ٹائملی پیمنٹ جمع ہوئی، ہم اس کو پریفر کریں گے، جبکہ پہلے جو جن کی بیلٹنگ کی گئی ہے ان میں سے صرف 7 بلاک کو تھرو آؤٹ زیرو اس کو بیلٹ میں ڈالا گیا، جبکہ باقی لوگوں نے بھی ٹائملی پیمنٹ جمع کروائی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا بھی کیا قصور ہے جنہوں نے ٹائملی پیمنٹ جمع کروائی، ان کو بیلٹ کر کے کسی اور بلاک میں دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے بیلٹنگ کرنی ہے تو سارے بلاک کی تھرو آؤٹ زیرو بیلٹنگ کریں۔ اب جو 7 بلاک کی کر دی گئی ہے اور باقی لوگوں نے ٹائملی پیمنٹ جمع کری، وہ بیچارے سفر ہو رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا شاہد مرزا ریئل اسٹیٹ، اس میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ یہاں مسائل یہ ہیں کہ مسائل تو ہر پروجیکٹ میں ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں مسائل تھا راستے کا، وہ راستہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے۔ دوسرا ایک پل کا مسئلہ تھا DHA 6 سے DHA ویلی میں، اس کا پہ بھی کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ مسائل ہیں، ڈیلیور انہوں نے کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 2009 میں بکنگ کروائی ہے وہ ان لوگوں سب کو پلاٹ ڈیلیور کریں، اور جس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں، اور DHA سے ہم جو ہے وہ باہر میٹنگیں کی ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جلدی سے جلدی الاٹیز کو یہ پلاٹ ڈیلیور کریں، اور پروجیکٹ کا جو تھوڑا بہت اس میں دبا لگا ہوا ہے پروجیکٹ میں کہ یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، اس کو کلیئر کریں۔ اور الحمدللہ جو عوام وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو ابھی ترقیاتی کام اچھے ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلدی سے جلدی لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور ہوں گے۔